تو میں عرض کر رہا تھا حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کے سب سے پہلے ایمان لانے پر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اپنی گواہی موجود ہے۔ میمون بن مہران سے کسی نے پوچھا کہ حضرت علی پہلے مسلمان ہوئے تھے یا حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ؟ ان کے ہاتھوں پہ راشہ طاری ہوا، ہاتھ میں لاٹھی تھی، وہ گر گئی۔ فرمانے لگے مجھے یہ توقع نہیں تھی کہ میں اس دور تک زندہ رہوں گا۔ لوگ مجھ سے یہ پوچھیں گے کہ ابوبکر پہلے مسلمان ہوئے تھے یا کوئی اور بندہ پہلے مسلمان ہوا تھا۔ پھر انہوں نے فرمایا جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اعلان نبوت سے پہلے شام کے سفر پر جا رہے تھے، بحیرہ راہب سے ملاقات ہوئی تھی۔ اس نے کہا یہ اس دنیا کے آخری نبی ہیں، ان کو واپس بھیج دو، وہاں کے یہود پہچان کر ان کو نقصان پہنچائیں گے۔ جب انہوں نے وہاں سے واپس بھیجا تھا، حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے اس وقت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا کلمہ پڑھ لیا تھا، اور اس وقت تک حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ پیدا بھی نہیں ہوئے تھے۔ ایمان میں سبقت کرنے والی اس دنیا کی عظیم ترین شخصیت نام حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ ہے۔ بات اعمال کی آتی ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ایک موقع پر فجر کی نماز پڑھ کے صحابہ کی طرف رخ کرتے ہیں۔ آپ ارشاد فرماتے ہیں اے صحابہ من اصبح منکم اليوم صائما، تم میں سے آج روزے کی حالت میں کون ہے؟ تاریخ الخلفاء میں تھوڑی وضاحت سے لکھا ہے، حضرت عمر بن خطاب نے عرض کیا حضور میرے دل میں خیال آیا تھا کہ میں رات کو روزہ رکھ لوں، لیکن میں روزہ نہیں رکھ سکا۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا اے اللہ کے نبی علیہ السلام میں روزے کی حالت میں ہوں۔ آپ علیہ السلام نے ارشاد فرمایا من عاد منکم اليوم مریضا، اے صحابہ آج تم میں سے مریض کی عیادت کس نے کی ہے؟ تاریخ الخلفاء میں قدر وضاحت ہے۔ حضرت عمر بن خطاب بولے، عرض کیا حضور فجر کی نماز پڑھ کے آپ کی خدمت میں بیٹھے ہیں، یہاں سے اٹھے نہیں ہیں، باہر نہیں گئے، کوئی وقت نہیں ملا کسی مریض کی عیادت کرتے۔ حضرت ابوبکر صدیق نے عرض کیا اے اللہ کے نبی علیہ السلام جب صبح مسجد کو آیا ہوں مجھے پتا تھا عبد الرحمن بن عوف بیمار ہیں، میں نے وہی راستہ لیا۔ اے اللہ کے نبی علیہ السلام میں ان کی عیادت کر کے آیا ہوں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے صحابہ آج تم میں سے صدقہ کس نے کیا؟ تاریخ الخلفاء میں حضرت عمر بن خطاب نے عرض کیا اے اللہ کے نبی علیہ السلام فجر کی نماز پڑھ کے آپ کی مجلس سے جدا نہیں ہوئے، ایسا موقع نہیں ملا کہ صدقہ کرتے۔ حضرت ابوبکر صدیق عرض کرنے لگے حضور میں مسجد میں آیا ہوں، ایک سائل نے آ کے سوال کیا ہے، میرے پاس دینے کو کچھ نہیں تھا لیکن میں نے دوسرے سے ادھار لے کر میں نے صدقہ کیا ہے۔ اے اللہ کے نبی علیہ السلام میں نے صدقہ بھی کیا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اے ابوبکر تجھے جنت مبارک ہو، مَجْتَمَعْنَا فِي امْرٍ إِلَّا دَخَلَ الْجَنَّةَ، جس بندے میں یہ صفات آ جائیں وہ ضرور جنت میں داخل ہوگا۔ ایک اور موقع ہے اللہ کے نبی علیہ السلام ایک ایک عمل کا ذکر کرتے ہیں۔ حضور علیہ السلام فرماتے ہیں من کان من اہل صدقہ تو من باب صدقہ، جو کثرت سے صدقہ کرتا ہوگا قیامت کے دن باب الصدقہ سے آواز آئے گی اے کثرت سے صدقہ کرنے والے اس دروازے سے جنت میں داخل ہو جا۔ من کان من اہل الجہاد تو من باب الجہاد، جو کثرت سے جہاد کرتا ہوگا باب الجہاد سے آواز آئے گی اے کثرت سے جہاد کرنے والے اس دروازے سے جنت میں داخل ہو جا۔ من کان من اہل الصلاح تو من باب الصلاح، جو کثرت سے نماز پڑھتا ہوگا باب الصلاح سے آواز آئے گی اے کثرت سے نماز پڑھنے والے اس دروازے سے جنت میں داخل ہو جا۔ من کان من اہل الصیام تو من باب الریان، جو کثرت سے روزہ رکھتا ہوگا باب الصیام باب الریان سے آواز آئے گی اے کثرت سے روزہ رکھنے والے اس دروازے سے جنت میں داخل ہو جا۔ حضرت ابوبکر صدیق حضور کی مجلس میں موجود ہیں، عرض کرتے ہیں اے اللہ کے نبی علیہ السلام پوچھنے کی ضرورت تو نہیں ہے لیکن کیا کوئی ایسا بندہ بھی ہوگا
होगा जिसको बाबुल सलात से भी आवाज आए यहाँ से जन्नत में दाखिल हो जा, बाबुल जिहाद से आवाज आए जहाँ से जन्नत में दाखिल हो जा, बाबुल जिहाद से आवाज आए यहाँ से जन्नत में दाखिल हो जा, बाबुल सदका भी पुकारे सारे दरवाजों से उस बंदे को बुलाया जाए यहाँ से जन्नत में दाखिल हो। आप अलैहिस्सलाम ने फरमाया फ़अर्जू अन तकूना मिनहुम, या अबू बकर, मैं अबू बकर मैं तवक्कुल रखता हूँ तू उन्हीं में से है। जन्नत के हर दरवाजे से आवाज आएगी ऐ अबू बकर इस दरवाजे से जन्नत में दाखिल हो जा, हर दरवाजा पुकारेगा ऐ अबू बकर तू मुझसे जन्नत में दाखिल हो जा। पता चला इयादत का वक़्त आए, पहला नंबर सिद्दीक़ अकबर का है, सदक़े का वक़्त आए, पहला नंबर सिद्दीक़ अकबर का है, नमाज की बारी आए, पहला नंबर सिद्दीक़ अकबर का है, रोजे का वक़्त हो, पहला नंबर सिद्दीक़ अकबर का है। हर खैर के काम में सबसे सबकत करने वाले हजरत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह ताला अन्हु हैं। हजरत उमर बिन खत्ताब रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के बाद एक बंदा कूफा से आता है और आकर कहता है ऐ उमर, एक कूफा का एक शख्स ऐसा है जो इतना गैर मोहतात है, उसका तरीका कार ये है हम कुरान खोलकर उसके ऊपर से पढ़ रहे होते हैं लेकिन वो जुबानी तौर पे आके गलती निकाल देता है, कहता है तूने ठीक नहीं पढ़ा, इसको इस तरह पढ़ो। हजरत उमर बिन खत्ताब को गुस्सा आना बड़ी जरूरी बात थी, गुस्सा आना बिल्कुल गैरत है, दीनी मसाइल पे गुस्सा खाना और जज्बात में आना ये दीनी गैरत, दीनी हमीयत मेरे मुस्तफा का सबक है। हजरत उमर को फरमाया था इहिन यमदा खत्ताब, ऐ खत्ताब के बेटे जो तेरे अंदर सख्ती है इसको मजीद पैदा कर। हजरत उमर बिन खत्ताब को गुस्सा आया, वो बंदा बात करता गया, करते करते उसकी जुबान से ये बात निकली, आप जानते हैं वो कौन बंदा है जो जुबानी गलतियां निकालता है? हजरत उमर बिन खत्ताब ने पूछा, वो बंदा कहने लगा वो अब्दुल्ला बिन मसूद रज़ी अल्लाह ताला अन्हु हैं जो जुबानी आकर हमारी गलती निकाल देते हैं, हम ऊपर से देख के पढ़ रहे होते हैं। हजरत उमर बिन खत्ताब का गुस्सा ठंडा हुआ, हजरत उमर बिन खत्ताब ने फिर इस पे एक वाकया सुनाया, फरमाया एक दिन सीयर में भी लिखा है और बहुत सारी किताबों में लिखा है। हजरत उमर बिन खत्ताब फरमाते हैं एक दिन सिद्दीक़ अकबर के घर में मैं भी था, अल्लाह के नबी भी थे, अबू बकर सिद्दीक भी थे, मुसलमानों के अहवाल के बारे में हम सोचो फिक्र कर रहे थे। हजूर अलैहिस्सलाम ने फरमाया चलो उठो और चलो मस्जिद में चलते हैं। हम तीनों बैठे, तीनों उठकर मस्जिद में आए, एक बंदे को देखा खड़ा होकर कुरान की तिलावत करता है, मैंने चाहा उस बंदे को रोक दूं, आप तिलावत ना करो, अल्लाह के नबी तशरीफ ले आए हैं, लेकिन अल्लाह के नबी ने इशारे से मना किया कि इसको नहीं रोको, इसको तिलावत करने दो। वो बंदा तिलावत करता रहा, अल्लाह के नबी ने सुना, हजरत सिद्दीक ने सुना, हजरत उमर ने सुना। जब उस बंदे ने तिलावत मुकम्मल की, पीछे मुड़ा, जाने लगा, हुजूर अलैहिस्सलाम ने फरमाया उसको देखा, वो अब्दुल्ला बिन मसूद थे। हुजूर अलैहिस्सलाम ने फरमाया मन सरहु अन यक़रअल कुरान रतबन कमा उनज़िल फलयक़रा बिक़िराअत इब्न उम्मे अब्द, जिसका दिल चाहे मैं कुरान वैसे पढ़ूं जैसे कुरान उतरा था, वो अब्दुल्ला बिन मसूद की किरात पे पढ़े। अब्दुल्ला बिन मसूद बिल्कुल ऐसे पढ़ते हैं जैसे कुरान उतरा था। हजरत उमर बिन खत्ताब रज़ी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं मैं सुबह उठा खुशी खुशी जाके अब्दुल्ला बिन मसूद को जाके खुशखबरी सुनाऊं, अल्लाह के नबी ने इतने बड़े एजाज की बात की है, आपके लिए बहुत बड़ा एजाज है, हुजूर ने आपकी तिलावत को पास किया है, अल्लाह के नबी ने पसंद किया है और फरमाया ऐसे पढ़ते हैं जैसे कुरान उतरा था। रास्ते में हजरत अबू बकर सिद्दीक से मुलाकात हुई, सिद्दीक पूछते हैं उमर किधर जा रहे हो? अर्ज किया मैं अब्दुल्ला बिन मसूद को खुशखबरी देने जा रहा हूँ। हजरत अबू बकर सिद्दीक ने फरमाया मैं खुशखबरी दे के वापस आ रहा हूँ। हजरत उमर बिन खत्ताब ने जो जुमला अर्ज किया ये मैं नहीं कहता, सिद्दीक की सबकत है। हजरत उमर बिन खत्ताब ने फरमाया इन्नका लसब्बाकुम बिल खैर या अबू बकर, अबू बकर हर खैर के काम में तू बहुत आगे बढ़ने वाला है, हम तुझे नहीं पहुंच सकते, हर खैर के काम में तू सबकत करने वाला है। सिद्दीक अकबर ने हर खैर के काम में सबकत की, उस सबकत की बुनियाद पे उनका नाम अबू बकर मशहूर हो गया, उनको अबू बकर कहा जाने लगा। लेकिन यहाँ एक और बात फायदे की अर्ज कर दूं मेरे दोस्तों, हर जगह अबू का माना बाप नहीं होता, अबू का माना वाला होता है, अबू का माना साहिब होता है, अबू का माना हमेशा बाप नहीं होता। हजरत अबू हुरैरा हैं तो बिल्ली के बाप नहीं, बिल्लियों वाले। हजरत अली रज़ी अल्लाह
अल्लाह ताला अन्हु अबू तुराब हैं, मट्टी के बाप नहीं, मट्टी वाले। इसी तरह हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम अबू ज़ियूफ हैं, मेहमानों वाले, मेहमानों के बाप नहीं। ऐसे ही हम अहले सुन्नत कहते हैं अबू बकर का माना बकर का बाप नहीं, हर काम में सबकत करने वाला। और अबू हनीफा का माना हनीफा का बाप नहीं, दीन हनीफ वाला, दीन हनीफ का खादिम। नारे तकबीर, ताजदार खत्म नबूवत, अज़मत सहाबा, सदाकत सिद्दीक़ अकबर, अदालत उमर, सखावत उस्मान, शुजाअत अली। नारे तकबीर। तो अबू बकर का माना हर खैर के काम में सबकत करने वाला, ईमान में भी सबकत की सिद्दीक़ अकबर ने, आमाल में सबकत की सिद्दीक़ अकबर ने, कुर्बानी में सबकत की सिद्दीक़ अकबर ने, हर खैर के काम में आगे बढ़े सिद्दीक़ अकबर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु। अबू बकर का माना हर खैर के काम में आगे बढ़ने वाला, अबू ज़ियूफ का माना मेहमानों वाला, अबू हुरैरा का माना बिलियों वाला, अबू तुराब का माना गर्द आलूद मट्टी वाला, अबू हनीफा का माना दीने हनीफ वाला, दीने हनीफ का खादिम। मुझे एक बंदे ने कहा, कहने लगा अबू हनीफा का माना हनीफा का बाप है। अबू हनीफा की एक बेटी थी, उस बेटी का नाम हनीफा था, उस मुनासबत से तुम अबू हनीफा कहते हो। मैं कहा नहीं यार, जो हम अहले सुन्नत ने निकाह कराया था ना अबू हनीफा का, उससे एक बेटा हम्माद पैदा हुआ था। अगर किसी ने खुफिया कराया है तो उसकी वजाहत करे। हमने जो अलल ऐलान निकाह कराया था, जिस पे हमने छुआरे बांटे थे, जिसके गवाह थे, वो फकत उस निकाह में एक हम्माद है, हनीफा नाम की कोई लड़की नहीं है। खैर मैं अर्ज कर रहा था, दीन हनीफ का खादिम, दीन हनीफ वाला हजरत अबू बकर सिद्दीक ने ईमान में सबकत की, अमाल में सबकत की, हर अमल में सबकत की। मेरे और आपके नबी अलैहिस्सलाम जब हिजरत करते हैं, सीधे चल के सिद्दीक अकबर के घर तशरीफ ले जाते हैं। कुफार भी ढूंढते ढूंढते सिद्दीक के घर पहुंचते हैं, क्योंकि काफिर भी जानता था मुस्तफा की दोस्ती है तो सबसे ज्यादा सिद्दीक अकबर से है। इसलिए काफिर भी चलकर सिद्दीक अकबर के घर आया तलाश करने के लिए। हजूर सिद्दीक के घर आए, आकर मेरे और आपके नबी अलैहिस्सलाम ने सिद्दीक अकबर से इस बात का इजहार कराया कि आप मेरे सफर में मेरे साथ खुशी के साथ चलना चाहते हैं, मेरे साथ जाना चाहते हैं। आप अलैहिस्सलाम ने फरमाया, ए अबू बकर अतुहिब्बु अन तुकीना माई, तू चाहता है क्या, तेरा ये दिल चाहता है इस सफर हिजरत में तो मैं मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ जाए। तो तलब कमा उतलब, लोग तुझे भी ऐसे तलाश करे जैसे मैं मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को तलाश करे। फतोरफ बिन्नका अंतल्लज़ी ततहम्मलुनी अला मा अद्दाई, लोग यूं समझे मैं मोहम्मद से दावा नबूवत कराने वाला तू है, लोग यूं समझे मुझसे दावा नबूवत कराने वाला तू है। हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु अर्ज करते हैं, ए अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम, लो इश्तु उम्र दुनिया, अगर अल्लाह मुझे पूरी दुनिया की उम्र के बराबर मुझे जिंदगी अता कर दे, वअज़्ज़बु फी जमीहा अशद्दल अज़ाब, सारी जिंदगी मुझे सख्त से सख्त अज़ाब दिए जाएं, वकाना ज़ालिका फी मुहब्बतिक, ये सब आपकी मोहब्बत में हो। अहब्बु इलैया अन अतनअम फीहा, मुझे ये इस बात से पसंद है कि मैं नाज़ो नेमत में रहूं। हल अना व माली व वलदी इल्ला फिदाअक या रसूल अल्लाह, अल्लाह के रसूल मैं भी आपके फिदा, मेरा माल भी आप पे फिदा, मेरी औलाद भी आप पे फिदा। सिद्दीक अकबर इस मोहब्बत का इकरार करके, इस मोहब्बत का ऐलान करके मुस्तफा के साथ सफर करते हैं। अब हजरत अबू बकर सिद्दीक और मुस्तफा का सफर होता है। सिद्दीक अकबर से हमने मोहब्बत भी सीखी है, सिद्दीक ने मोहब्बत में भी सबकत की है, सिद्दीक ने मोहब्बत में
सबकत की। बहुत तवज्जो चाहूंगा, सिद्दीक ने मोहब्बत में भी सबके सबसे सबकत की है। चलते हुए सिद्दीक कभी आगे चलते हैं, कभी हुजूर के पीछे चलते हैं। आप अलैहिस्सलाम ने फरमाया, अबू बकर ये क्या अदा है, कभी आगे चलते हो कभी पीछे चलते हो। अर्ज किया, हुजूर जब दिल में ख्याल आता है सामने दुश्मन छुपा हुआ हो, आपको नुकसान न पहुंचा दे तो मैं आपके आगे हो जाता हूँ। जब दिल में ख्याल आता है दुश्मन पीछे से वार न कर दे, ऐ अल्लाह के नबी मैं पीछे आ जाता हूँ। अगर मैं मारा गया कोई बात नहीं है, कौम का आम आदमी हूँ, अगर आप शहीद होंगे रब के दीन का क्या बनेगा। इस चलते चलाते सफर में मेरे आपके नबी को भूख लगती है, प्यास लगती है। सिद्दीक अकबर एक रेवड़ वाले से जानवर लेकर उसमें एक पत्थर में उसका दूध धोकर अल्लाह के नबी को उसमें पानी डाल के अल्लाह के नबी को पिलाते हैं। और बुखारी शरीफ में है, जब अल्लाह के नबी ने सैर होकर उस दूध को पिया, यूं कह ले जैसे आज के दौर में हम कच्ची लस्सी ठंडक हासिल करने के लिए बनाते हैं, सिद्दीक अकबर ने बना के मुस्तफा को पिलाई है। मेरे और आपके नबी ने सैर होके पी है। उस पीने पर सिद्दीक अकबर क्या फरमाते हैं, फशरबा हत्ता रज़ीतो, हुजूर ने इतना पिया यहां तक कि मैं राजी हो गया। पिया किसने जी? हुजूर ने। राजी कौन हुआ? हजरत अबू बकर सिद्दीक रजी अल्लाह ताला अन्हु। मोहब्बत में भी सबकत की है। सिद्दीक अकबर ने साला माल भी कुर्बान किया, पूरे घर को भी दीन पे लगाया, अपनी जान को भी साथ लगाया। गार में जाके मेरे आपके नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए गार को साफ करते हैं, हुजूर को अंदर लेके जाते हैं। सिद्दीक अकबर रजी अल्लाह ताला अन्हु को मेरे और आपके नबी का फिक्र था, अपनी जान का फिक्र नहीं था। वहां सिद्दीक अकबर जब कुफार को दरवाजे पे देखते हैं, सिद्दीक अकबर रो पड़ते हैं, हुजूर इन्होंने हमें देख लिया है। फरमाया नहीं देखा। सिद्दीक परेशान हो गए। मेरे और आपके नबी ने जो इरशाद फरमाया वो कुरान में भी मौजूद है, ला तहज़न इन्नल्लाह माना, तू हुज़न न कर, मेरा गम न कर, अल्लाह हमारे साथ है। और बुखारी में अल्लाह के नबी के अल्फाज, मा ज़न्नो का बे इस्नैन अल्लाह सालिसुहुमा, तेरा उन दो के बारे में क्या गुमान है जिनके साथ तीसरा अल्लाह है। मुल्ला अली कारी ने इन अल्फाज से पर्दा उठा के पूरी उम्मत मुस्लिमा को वजाहत कर दी। मेरे मुस्तफा के इस इरशाद का मतलब क्या था, अल्लाह सालिसुहुमा, हमारे साथ तीसरा अल्लाह है। मतलब ये था जब कोई ग्रोह का, जब कोई जत्था का, जब कोई जमात किसी का मुकाबला करती है, उनकी एक की शिकस्त सबकी शिकस्त होती है और एक की फतह सबकी फतह होती है। फतह भी इकट्ठे होती है, शिकस्त भी इकट्ठे होती है। यहाँ हुजूर ने बता दिया, सिद्दीक मैं और तू दो नहीं है, हम तीन हैं और अल्लाह को शिकस्त देने वाला कायनात में कोई नहीं है, इसलिए फतह यकीनी है। सिद्दीक सब्र करो, ला तहज़न इन्नल्लाह माना, हुज़न न कर, अल्लाह हमारे साथ है। मेरे नबी ने ऐलान किया, जैसे अल्लाह मेरे साथ ऐसे सिद्दीक के साथ भी है। हम तीन हैं, एक अल्लाह है, एक सिद्दीक है, एक मुस्तफा है। मेरे नबी पर सिद्दीक अकबर ने हर चीज फिदा की है। इस फिदा करने में भी सबसे पहला नंबर सिद्दीक अकबर का था। जब सिद्दीक अकबर का पहला नंबर है तो उसको अबू बकर ही कहा जाता है। हर काम में सबकत करने वाले का नाम अबू बकर, हर खैर के काम में आगे बढ़ने वाले का नाम अबू बकर। बहुत जो हर खैर के काम में आगे बढ़ने वाले का नाम अबू बकर। ईमान में सबकत है, आपकी नमाज में सबकत है, रोजे में सबकत है, जिहाद में सबकत है और इयादत में सबकत है, कुर्बानी में सबकत है, बिशारतें देने में सबकत है। मुस्तफा की हर पसंद के अमल में सिद्दीक अकबर की सबकत है। जिसके हर काम में सबकत हो उसे अबू बकर कहते हैं। हजरत अली फरमाते हैं, मेरे और आपके नबी ने सिद्दीक अकबर को हमारी अहम तरीन इबादत नमाज का मुसल्ला दिया। हमने उनको अपनी दुनिया का इमाम तस्लीम कर लिया। जब हर काम में सबकत थी तो खिलाफत में भी सिद्दीक अकबर का पहला नंबर, कलमे में पहला नंबर, नमाज में पहला नंबर, हज में पहला नंबर, ज़कात में पहला नंबर, इयादत में पहला नंबर, बिशारत में पहला नंबर, खिलाफत में भी। नारे तकबीर, ताजदारे खत्म नबूवत, अज़मत सहाबा, मज़हब इस्लाम, मुस्तफा
मुस्तफा के हम सफर, मुस्तफा के हम सफर, हजरत मौलाना मोहम्मद अब्दुल्ला बनाए साहब। तो सिद्दीक अकबर रजी अल्लाह ताला की हर चीज में पहल थी, तो खिलाफत में भी सिद्दीक अकबर की पहल। वो तो जो सिद्दीक पे माल की कुर्बानी आए, नंबर पहला है। जो रोजे की आजमाइश आए, नंबर पहला है। ज़कात और सदके की आजमाइश आए, नंबर पहला है। जब सारी आजमाइशें सिद्दीक अकबर बर्दाश्त करते गए और पास होते गए, हर आजमाइश में पूरा करते गए, सिद्दीक अकबर पर रब ने एक बहुत बड़ी आजमाइश डाली। वो आजमाइश ऐसी थी जो दुनिया में किसी आम आदमी से नहीं ली जा सकती थी। वो आजमाइश क्या थी? एक तरफ मोहब्बत रसूल थी, एक तरफ इताअत रसूल थी। हजरत फातिमा रजी अल्लाह ताला अन्हा का पैगाम जाता है बागे फदक के बारे में। मुस्तफा फरमाते हैं, हजरत अबू बकर सिद्दीक फरमाते हैं, मुस्तफा की कराबत मुझे अपनी कराबत से ज्यादा महबूब है, लेकिन मुस्तफा के कानून से मैं बाल बराबर भी पीछे नहीं हट सकता। मेरी सारा माल, मेरी हर चीज फातिमा के लिए हाजिर है। मेरे माल से जो लेना चाहे फातिमा ले ले, लेकिन मेरे मुस्तफा का जो कानून है, मैं कानून से बाल बराबर पीछे नहीं हट सकता। अगर मैं बाल बराबर पीछे हट गया तो मैं गुमराह हो जाऊंगा, मैं राह से हट जाऊंगा। सिद्दीक अकबर ने वो कानून पेश किया जिस कानून को हजरत उमर बिन खत्ताब ने कबूल किया, पूरे दौर में यही कानून रहा। हजरत उस्मान ने कबूल किया, पूरे दौर में यही रहा। हजरत अली ने कबूल किया, पूरे दौर में यही रहा। हजरत हसन ने कबूल किया, पूरे दौर में यही रहा। हुसैन ने कबूल किया, एक दिन भी गिला नहीं किया, क्योंकि ये बिल्कुल कानून मुस्तफा के मुताबिक था, कुरान के मुताबिक था। मैं कहता हूँ सिद्दीक पर शायद इससे बड़ी कोई आजमाइश आती, ये मोहब्बत रसूल की आजमाइश सिद्दीक पे डाली गई, लेकिन सिद्दीक अकबर मोहब्बत रसूल को बाकी रखते हुए कानून मुस्तफा का पास करके क़यामत तक के बंदों के लिए ये कानून छोड़ दिया कि तौलीयत में कभी भी विरासत जारी नहीं होगी। तौलीयत मेरे मुस्तफा का कानून है, मेरे रब का कानून है, वो तौलीयत में विरासत जारी नहीं होती। सिद्दीक हजरत फातिमा भी यही कानून का ऐलान कराना चाहती थी, सिद्दीक ने भी वही किया। हजरत अली ने बरकरार रखा, जो बंदा सिद्दीक अकबर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से खुश नहीं है, उसे चाहिए हजरत अली से भी खुश ना हो। क्यों? अगर नऊज़ बिल्लाह सिद्दीक अकबर गासिब थे, नऊज़ बिल्लाह हजरत उमर गासिब थे, नऊज़ बिल्लाह हजरत उस्मान गासिब थे, हजरत अली ने भी फिर उस गज़ब को बाकी रखा है ना। अगर एतराज है सिर्फ सिद्दीक पे नहीं, हजरत अली पे है, लेकिन एतराज ना सिद्दीक पे है ना हजरत अली पे है। सिद्दीक भी मेरे मुस्तफा के मुती थे, हजरत अली भी मुस्तफा के मुती थे। एतराज की कोई बात नहीं है। वो तवज्जो फरमाएं। मैं अर्ज कर रहा था, सिद्दीक अकबर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु पर मोहब्बत के हवाले से आजमाइश आई। सिद्दीक उस आजमाइश में भी कामयाब हुए, सिद्दीक उस आजमाइश में भी कामयाब हुए। मुझे एक बंदा मिला, मैंने उससे अर्ज किया, मैं वैसे जिसके बारे में कहा मुझे मिला, वाकई मिला, मुझे एक बंदा मिला, उसने मुझे कहा कि मौलाना साहब कोई हल बताएं। मैंने भी सवाल किया, मैंने कहा आप भी सोचें कि शिया सुन्नी मसाइल का हल क्या है। कहते आप बताएं। मैंने कहा मैं नहीं बताना है, इसका हल तो ये है, हजरत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को तुम भी इमाम मान लो, हम भी हजरत अली को इमाम मानते हैं। हजरत अली ने सिद्दीक के हाथ पे बैत की है, तुम भी कर लो। हजरत उस्मान के हाथ पे बैत की है, तुम भी कर लो। हजरत उस्मान हजरत उमर के हाथ पे बैत की है, तुम भी कर लो। आगे इख्तिलाफ तो इतना है, तुम कहते हो हजरत अली ने ऊपर के दिल से दिखावे के लिए पीछे नमाजें पढ़ी, हम कहते नहीं, दिल की था गहराइयों से पढ़ी है। आओ तुम दिखावे के लिए हमारे पीछे नमाजें पढ़ो, हम समझेंगे तुम दिल की था गहराइयों से करते हो। जैसे हजरत अली ने एक दिन भी उन दीन से लड़ाई नहीं की, तुम भी हमसे लड़ाई ना करो। हाल मुनासिब है, हजरत अली को इमाम मान लो। अक़ज़ाहुम अली, उम्मत के सबसे बड़े काजी और जज हजरत अली रज़ी अल्लाह
اللہ تعالی عنہ بہت توجہ فرمائے، حضرت علی کے حضرت ابوبکر صدیق کو حضور علیہ السلام نے نام لے کے جنتی فرمایا۔ بہت ساری خصوصیات صدیق اکبر کی قرآن کریم میں موجود ہیں، لیکن ان سب کو چھوڑ کے میں نے بہت اپنے ٹائم کے اعتبار سے، کیونکہ پہلے بھی میں سن رہا تھا جزاک اللہ، سٹیج سے جزاک اللہ آئے تو مطلب ہوتا ہے بس کرو، نیچے سے جزاک اللہ آئے تو مطلب ہوتا ہے چلتے رہو، تو بہت توجہ، میں نے جزاک اللہ سے پہلے بات ختم کرنی ہے، بہت توجہ۔ صدیق ابوبکر فی الجنہ، حضرت عمر ابوبکر جنت میں ہیں، حضرت ابوبکر جنت میں، حضرت عمر جنت میں، حضرت عثمان جنت میں، حضرت علی جنت میں۔ بہت توجہ سے، مجھے آپ کو کوئی بتانے کی ضرورت تھی کہ ہمیں حضور بتاتے جنت میں ہیں؟ اللہ نے قرآن میں بار بار رضا کا اعلان کیا، مجھے آپ کو کوئی بتانے کی خاص سامنے ظاہری طور پر صرف اعزاز کے لیے بتانے کی ضرورت نہیں تھی۔ مطلب کیا تھا؟ صدیق اکبر جنت میں، جو صدیقی کلمہ پڑھ کے آئے گا اس نے جنتی کلمہ پڑھا ہے، جس کا کلمہ صدیق سے نہیں ملتا وہ جنتی کلمہ نہیں ہے، وہ جنتی کلمہ نہیں ہے۔ جس نے کلمہ پڑھنا ہے صدیق جنت میں ہے، صدیق جنتی ہے۔ جس نے کلمہ پڑھ کے آنا ہے جنتیوں والا کلمہ پڑھ کے آئے، وہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ ہے۔ جنتیوں کے علاوہ کا کلمہ قابل قبول ہے۔ ہمیں پتہ چل گیا صدیق کو جنتی فرمایا، ہر کام میں پہل کی ہے۔ اگر کلمہ کو لمبا کرنے میں خوبی ہوتی تو صدیق بہت لمبا کر لیتے، لیکن صدیق نے لمبا نہیں کیا، ہم نے بھی لمبا۔ بہت توجہ کرے، ہم نے کلمہ بھی پڑھا ہے، ہم نے اذان بھی سیکھی ہے۔ میرے نبی علیہ السلام نے، یا ڈوب کے بعد لوگوں کو تو مر جانا چاہیے جن کو حضرت عمر پہ اشکال ہے۔ بہت توجہ، حضور علیہ السلام پہ نماز فرض ہوئی ہے، نماز کے لیے بلانا ہے، اعلان ہوا، جی کیسے بلائیں؟ مشورہ شروع ہو گیا، کسی نے کہا جی اس طرح کریں کہ نماز کے لیے بلانا ہے تو ہم یوں کریں، ایک دھواں جلا دیا کریں، لوگ دیکھ کر آ جایا کریں۔ فرمایا نہیں، مجھے اسی سے مشابہت ہے، ہم نے ایسا نہیں کرنا۔ دوسرے شخص نے کہا سینگ بجایا جائے، لوگ آواز سن کے آ جائیں۔ فرمایا ہم نے ایسا نہیں کرنا، یہ عیسائیوں سے مشابہت ہے۔ حضرت عمر بن خطاب فرماتے ہیں الصلاۃ جامعہ کا اعلان کرو، لوگوں نماز کے لیے جمع ہو جاؤ، یہ اعلان کر دو، لوگ آ جائیں گے۔ میرے نبی فرماتے ہیں بالکل ٹھیک ہے، عمر کی سمجھ معتبر ہے، عمر نے ٹھیک کہا ہے، الصلاۃ جامعہ سے ہی لوگوں کو بلایا جائے گا۔ آپ بتاؤ میرے نبی نے عمر کی سمجھ کو معتبر مانا کہ نہیں مانا؟ عمر کی سمجھ کو معتبر مانا۔ الصلاۃ جامعہ کا اعلان رات کو طے ہو گیا ہے، اور صبح کو 11 صحابہ حضور کی خدمت میں آتے ہیں۔ ایک صحابی آ کے کہتے ہیں حضور خواب دیکھا ہے، ایک بندہ ناقوس لے کے جا رہا تھا، ہم نے کہا اے صاحب ناقوس یہ ناقوس مجھے دے دے۔ اس نے پوچھا کیا کرنا ہے؟ میں کہا ہم بجا کر لوگوں کو نماز کے لیے بلائیں گے۔ خواب والے بندے نے کہا چھوڑو، ایسا نہ کرو، جب نماز کا وقت آئے یوں کہا کرو اللہ اکبر اللہ اکبر، اشہد ان لا الہ الا اللہ، اشہد ان محمد رسول اللہ، حی علی الصلاۃ حی علی الفلاح، لا الہ الا اللہ، یہ کلمات کہا کرو، لوگ نماز کے لیے آ جائیں گے۔ صحابی نے خواب سنایا، پیچھے 10 صحابہ اور آئے، حضور ہم نے بھی یہی خواب دیکھا ہے کہ اذان کہاں سے شروع ہوئی جی؟ اللہ اکبر سے سارے ہی کہہ دو، کہاں سے شروع ہوئی اور ختم کہاں ہوئی؟ لا الہ الا اللہ پہ۔ حضور نے فرمایا یہ رب نے فرشتہ بھیجا تھا جو تمہیں تمہاری اذان سکھانے آیا تھا۔ ہمیں جو رب نے اذان دے کر فرشتے کو بھیجا، 11 صحابہ نے خواب دیکھا، ان 11 صحابہ میں ایک حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ بھی تھے، انہوں نے بھی خواب میں یہی اذان دیکھی، فرشتہ سکھانے آیا ہے۔ اگر تمہاری رائے اللہ نے قبول کرنی ہوتی تو پھر تو وہ سینگ بجانے والی بات ہی ٹھیک تھی، دھواں جلانے والی بات ٹھیک تھی۔ اللہ نے فرمایا نہیں، نماز بھی میں نے فرض کی ہے، اذان بھی میں نے دینی ہے۔ جو رب نے اذان مجھے آپ کو دی، اللہ اکبر سے شروع ہوئی، لا الہ الا اللہ پہ ختم ہوئی، اللہ اکبر سے پہلے کچھ نہیں، لا الہ الا اللہ کے بعد کچھ نہیں، اشہد ان محمد رسول اللہ کے بعد کچھ نہیں۔ جب تو کہتا ہے اشہد ان محمد رسول اللہ کے بعد جو جملہ بڑھاتا ہے غلط ہے، تو اللہ اکبر سے پہلے جو بڑھاتا ہے وہ بھی غلط ہے، لا الہ الا اللہ کے بعد جو بڑھاتا ہے وہ بھی غلط ہے۔ میں بڑھانے کا بھی قائل نہیں ہوں، میں اقامت کے
मोहम्मद आबिद साहब। बहुत तवज्जो फरमाइए जी। हमने अजान बढ़ाई भी नहीं, हमने अजान बढ़ाई भी, शुरू में भी नहीं बढ़ाई, आखिर में भी नहीं बढ़ाई, दरमियान में भी नहीं बढ़ाई, और इकामत हमने खाई भी, हमने बढ़ाई भी नहीं, हमने खाई भी। जो सिद्दीक ने अजान देखी थी वही कही है, जो सिद्दीक ने इकामत कही थी हमने वही कही है। हमारी अजान जन्नती अजान है, हम मशकूक अजान नहीं कहना चाहते जिसकी मेरे नबी ने तरदीद कर दी थी कि नहीं हमें कबूल, हमने नहीं बढ़ानी। जब अल्लाह ने अजान भेजी वही अजान मेरी आपकी मस्जिद में है, वही जन्नती अजान है। अगर बढ़ गई शुरू में गलत है, आखिर में बढ़ गई गलत है, दरमियान में बढ़ गई फिर भी बहुत तवज्जो करे। हमने शरीयत पे चलना है, जन्नती शरीयत पे चलना है, मशकूक और गलत शरीयत पे। सिद्दीक अकबर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, मेरे और आपके नबी मर्ज की हालत में हुजूर को तकलीफ है, आखिरी वक्त है दुनिया से पर्दा फरमाने का। सिद्दीक अकबर को हुक्म दिया और आपने खवातीन, घर की खवातीन को, हजरत अबी आयशा सिद्दीका को हुक्म दिया, अबू बकर सिद्दीक को कहो लोगों की इमामत कराए। बहुत तवज्जो, सिद्दीक को कहो लोगों को इमामत कराए। हुजूर को, सिद्दीक को इमाम बनाया, मेरे मुस्तफा ने सिद्दीक को इमाम बनाया सारे लोगों का। मेरे मुस्तफा ने सिद्दीक इमामत पे खड़े हैं, मेरे नबी आगे, हुजूर को पता चला कि हजरत अबू बकर को पता चला, हुजूर तशरीफ ले आए हैं, सिद्दीक पीछे हो गए, मुस्तफा आगे हो गए। मुस्तफा ने इमामत कराई है, सिद्दीक पीछे मुकब्बर बन गए। बहुत तवज्जो, जो अमल सिद्दीक ने किया था मेरे मुस्तफा ने उसकी तस्वीर फरमाई है, उसकी तस्दीक की है, क्योंकि मेरे नबी ने किरात वहां से शुरू की जहां तक सिद्दीक कर चुके थे। मेरे नबी ने बता दिया सिद्दीक ने जो अमल किया है मैं मुस्तफा को पसंद है। सफा नंबर 87 इब्ने माजा में लिखा है, मुस्तफा ने किरात वहां से शुरू की जहां तक सिद्दीक कर चुके थे। मुस्तफा ने सिद्दीक की नमाज की तस्दीक कर दी, सिद्दीक की किरात की तस्दीक कर दी। सारी दुनिया को मेरे मुस्तफा ने ऐलान कर दिया, जो वही इलाही के बगैर बोलते नहीं, तुम सबका इमाम मेरे बाद सिद्दीक। जिन्होंने माना उन्होंने ही मुस्तफा को माना, जिन्होंने नहीं माना उन्होंने मुस्तफा को भी बहुत तवज्जो करे। जो कहते हैं जी अबू बकर मोमिन तो थे, पहले नंबर पर थे, लेकिन हम उनके कौलो फेल को नहीं मानते, तो फिर मानता किस चीज को है? अगर सिद्दीक के कौलो फेल को नहीं मानता फिर बता तू मानता किस चीज को है? मुस्तफा ने जिस पहले शागिर्द की, अल्लाह के नबी ने पहले शागिर्द की तरबियत करके जिसको अल्लाह के सामने पेश किया है, जब तू उसको नाकाम मानता है तेरा ईमान कहां पे? बहुत तवज्जो फरमाए। सिद्दीक अकबर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने कुरान की किरात वहां से शुरू की है जहां तक नबी अकरम, अल्लाह के नबी ने किरात वहां से शुरू की जहां तक सिद्दीक कर चुके थे। बहुत तवज्जो ध्यान से बात को सुने। 87 सवा इब्ने माजा पे लिखा है, अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम आकर नमाज में शरीक हुए हैं, सिद्दीक इमाम थे, अल्लाह के नबी मुक्तदी बन गए ना, और मुक्तदी को इमाम की किरात काफी होती है ना, हुजूर फिर इमामत पे आए हैं जहां तक सिद्दीक के साथ शरीक हुए थे। वो किरात मुस्तफा ने नहीं की, उससे आगे की है, और पीछे सिद्दीक अकबर मुकब्बर बने हैं। सवाल ये है, मुस्तफा ने जहां पे सिद्दीक की इक्तदा की है उस वक्त की तिलावत मुस्तफा ने मुकम्मल नहीं की है। अगर तुम कहते हो इमाम के पीछे किरात न करो नमाज नहीं होती, बता मुस्तफा की पहली भी मुस्तफा की आखिरी नमाज में सूरह फातिहा नहीं है? अगर तू कहे नहीं हुई, बता मुस्तफा की नमाज हुई है कि नहीं? सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। हुजूर आकर पीछे शरीक हुए नमाज में जहां शरीक हो के अल्लाह अकबर कह लिया, इमाम की किरात मुक्तदी को काफी होगी। अब मुक्तदी इमाम बन गया, सिद्दीक मुक्तदी बन गए। जब सिद्दीक मुक्तदी बने, हुजूर ने अपनी फातिहा मुकम्मल नहीं की, वहां से कुरान पढ़ना शुरू किया जहां तक सिद्दीक पढ़ चुके थे, चाहे एक आयत पढ़ चुके थे,
चाहे 2 पढ़ चुके थे, चाहे पूरी फातिहा पढ़ चुके थे, सिद्दीक की पढ़ी हुई किरात को मुस्तफा ने दोहराया नहीं है। जो कहे अगर फातिहा इमाम के पीछे ना पढ़ो नमाज नहीं होती, उसका फतवा मुस्तफा की आखिरी नमाज पे है। और आले सुन्नत कहते हैं मुस्तफा की आखिरी नमाज भी हमारे लिए दलील है कि इमाम के पीछे इमाम का पढ़ा हुआ कुरान पढ़ने की जरूरत नहीं है। सुभान अल्लाह। बहुत तवज्जो फरमाएं। हजूर इमाम बन गए, सिद्दीक अकबर मुक्तदी बन गए और मुकब्बर बन गए अल्लाह के नबी के। मुकब्बर बन गए सिद्दीक अकबर। हजूर अल्लाह अकबर फरमाते, सिद्दीक पीछे ऊंची आवाज से अल्लाह अकबर फरमाते। हजूर अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह फरमाते हैं, सिद्दीक भी ऐसे फरमाते हैं। हजूर ने अपनी निगरानी में सिद्दीक को मुकब्बर बना के पूरी दुनिया के मुसलमानों को और पूरी दुनिया के इंसानों को बता दिया, सिद्दीक पीछे वही आवाज पहुंचाएगा जो मुस्तफा की होगी। सुभान अल्लाह। सिद्दीक पीछे वही आवाज पहुंचाएगा जो मुस्तफा की होगी। सिद्दीक अपनी बात नहीं करेगा, सिद्दीक मुस्तफा वाली बात अर्ज करेगा। मैंने अर्ज किया सिद्दीक अकबर के इस फेल से मुस्तफा की आखिरी नमाज से पता चला इमाम के पीछे मुक्तदी ने किरात नहीं करनी। बहुत 3 शख्सियात। हजरत अब्दुल्ला बिन मसूद फरमाते हैं मैंने सिद्दीक के पीछे नमाज पढ़ी, शुरू के अलावा कहीं पर हाथों को नहीं उठाते थे। सिद्दीक की जन्नती नमाज उस नमाज में शुरू के अलावा रफ़ाइदैन नहीं है। मैं भी नमाज पढ़ता हूँ, दारा कुतरी में लिखा है, मैं भी नमाज पढ़ता हूँ, शुरू के अलावा कहीं रफ़ाइदैन नहीं करता। अगर सिद्दीक को सुन्नत समझ नहीं आई, सिद्दीक जन्नत में कैसे पहुंचे? और अगर तेरे ख्याल के मुताबिक बगैर सुन्नत समझे जन्नत में पहुंच गए हैं तो उनके नक्शे कदम पर चलने वाला भी जन्नत में पहुंच जाएगा। बहुत तवज्जो फरमाएं। सिद्दीक अकबर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, मेरे और आपके नबी आखिरी बात बहुत तवज्जो है, आखिरी लेकिन है थोड़ी सी लंबी, तवज्जो करें। सिद्दीक अकबर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु सहाबा कहते हैं हमारा दुनिया का सबसे दुख भरा दिन वो था जिस दिन मुस्तफा दुनिया से पर्दा फरमा गया। इससे ज्यादा हमारा कोई दुख भरा और अंधेरा दिन नहीं था। सबसे बड़ा दिन वो था। हजरत देरवी रहमुल्लाह को जब आप याद करते हैं आप कहेंगे बड़ा हमारा दुख भरा दिन था। यार हजरत हमसे जुदा हो गए, हमारे बड़े शफीक थे, हम पे मुरब्बी थे, हमारे लिए अल्लाह की रहमत थे। लेकिन मुस्तफा और सहाबा की मोहब्बत कितनी होगी। उस मुस्तफा और सहाबा की मोहब्बत को देखो। जब मुस्तफा जुदा हुए सहाबा कहते हैं दुनिया का अंधेरा तरीन दिन ये था हम पर, लेकिन सिद्दीक ने खुतबा दिया। 5-6 लाइनों का खुतबा है, समझ ले 5 मिनट का खुतबा है। सिद्दीक अकबर ने उस 5 मिनट के खुतबे में जो बातें की हैं कोई बात भी गैर अहम नहीं, सब अहम से अहम तर है। ऐसी बात कोई बात गैर अहम बहुत तवज्जो। मैं एक बात और भी अर्ज कर दूं ज़ैद, कुरान ने कहा ईमान लाना है तो ऐसा लाओ जैसे सहाबा लाए। ऐसा ही है जी। सहाबा में पहला बंदा कौन था? तो सारे सहाबा को भी यही था अगर ईमान लाना है सिद्दीक जैसा लाओ। ईमान लाना तो किस जैसा लाओ? सहाबा को भी हुक्म था कैसा ईमान लाओ? सिद्दीक अकबर उस वक्त मिंबर पे तशरीफ लाते हैं और सहाबा वहां पे मौजूद हैं कसीर तादाद में। सिद्दीक अकबर एक खुतबा देते हैं, 517 सफा बुखारी जिल्द अव्वल पर मौजूद है। आपने आधा सुना है, आपने मुकम्मल नहीं सुना। आपने इतना सुना इन्ना मुहम्मदन कदमात। सिद्दीक ने ऐलान किया अल्लाह के नबी फौत हो चुके हैं, अल्लाह के नबी फौत हो चुके हैं। आपने इतना खुतबा बारहा सुना है। मैं अगली बात कहता हूँ, सिद्दीक ने ऐलान किया इन्ना मुहम्मदन कदमात, अल्लाह के नबी वफात पा चुके। किसी सहाबी ने इनकार नहीं किया, सबका इजमा था वाकई मुस्तफा वफात पा चुके। ऐसे ही किसी ने इनकार। दूसरा खुतबे का दूसरा जुज़, सिद्दीक अकबर ने दूसरा कसम उठा के कहा ला युज़ीकुल्लाहुल मौततैन अबदा। अल्लाह के नबी रब आपको 2 मौतें कभी भी नहीं सिखाएगा। 2 मौतें
اپنے قریب کے علماء سے فتح الباری اور عمدۃ القاری میں یہی خطبہ صدیق نکال کر وضاحت کے ساتھ پوچھ لینا. میں فقط اتنی بات کہوں گا, بندہ قبر میں جاتا ہے, اس کو وہاں پہ ایک دفعہ جب حیات ملتی ہے, حساب و کتاب ہوتا ہے. مسلم کی حدیث ہے, کہا جاتا ہے نم کا نومد العروس, سو جا دلہن کے سونے کی طرح. اور قیامت کے دن کافر اپنی قبر سے اٹھتے ہوئے یوں کہے گا, من باسنا من مرقدنا, ہمارے سونے کی جگہ سے ہمیں کس نے اٹھا دیا. معلوم ہوا قبر میں نیند طاری ہوتی ہے. نیک بندے پر بھی بد بندے پر بھی ہم سوتے ہوئے کہتے ہیں اللہم بسم کا اموت و احیا, مرا نہیں تھا سویا تھا, سونے کو موت کہا. الحمدللہ الذی احیانا بعد ما اماتنا و الیہ النشور, مرنے سے زندہ نہیں ہوا, سونے سے بیدار ہوا ہے, اس کو موت کہا. صدیق اکبر نے اعلان کیا, اے اللہ کے نبی, جو موت آنی تھی آ گئی ہے. جب قبر میں آپ کو حیات حاصل ہوگی, پھر وہ حیات آپ سے جدا نہیں ہوگی, آپ کو دوسری موت نہیں آنی. فتح الباری, عمدۃ القاری, موجودہ بخاری کا حاشیہ 517 صفحے پر. فالاحسن ان یقال ان حیاتہ صلی اللہ علیہ وسلم لا یتعقبها موتر بل یستمر حیا, الانبیاء احیاء فی قبورہم. احسن یہ ہے یوں کہا جائے, جب قبر میں مصطفیٰ کو حیات ملے گی, وہ حیات پھر مصطفیٰ سے کبھی جدا نہیں ہوگی, اس لیے کہ انبیاء اپنی قبروں میں زندہ ہوتے ہیں. نعرہ تکبیر, تاجدار ختم نبوت, عقیدہ حیات النبی, حضرت مولانا محمد عبداللہ عابد صاحب. تو جب فرمائیے صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ نے موت کا اعلان کیا, ہم نے انکار, صحابہ نے انکار, صدیق نے حیات کا اعلان کیا, صحابہ نے انکار, موت بھی مان, موت کے بعد حیات بھی مان. جو صدیق کا عقیدہ ہے پوری دنیا کو اعلان ہے, عقیدہ لاؤ صدیق جیسا. اگر حیاتی ہے تیرا عقیدہ صدیق جیسا ہے, اگر حیاتی نہیں صدیق کا عقیدہ اور ہے تیرا اور ہے, وہ یقیناً جنت میں ہے, تو وہاں نہیں پہنچ سکتا. عقیدہ نہیں ملتا جنت میں, صدیق جہاں ہے وہاں تو نہیں جائے گا نا. بہت توجہ فرمائیں. صدیق اکبر کی وفات کا وقت آیا, سورہ کاف کی تفسیر رازی میں لکھا ہے, صدیق اکبر نے وصیت کی ہے. بہت ہی توجہ جی, یہ تو سچی مچی کی آخری بات ہے انشاءاللہ کہہ دوں جی. توجہ, صدیق وصیت کرتے ہیں صحابہ کو. عمر تھے نا, عثمان تھے, علی تھے, عبداللہ بن مسعود تھے. صدیق وصیت کرتے ہیں جب میں مر جاؤں میری میت کو اٹھا کے مصطفیٰ کے روضے پہ لے جانا, جا کے وہاں سے میری طرف سے سلام کہنا. اگر جواب ملے مجھے وہاں دفن کرنا, نہ ملے میری میت کو اٹھا کے عام قبرستان میں دفن کر دینا. سبحان اللہ, سبحان اللہ, صدیق وفات کے بعد بھی مصطفیٰ کی رضا کا خیال کرتے ہیں. سبحان اللہ. صحابہ کو وصیت کی. کوئی صحابی تو آج کے بندے جیسا موحد ہوتا نا, کہتا نہیں صدیق تیرا عقیدہ ٹھیک نہیں ہے. بہت توجہ, لیکن اس دور میں مونچھو والا مولوی ہوتا ہی نہیں تھا کوئی. صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ وصیت کرتے ہیں, عمر بن خطاب ہیں, عثمان و علی ہیں, عبداللہ بن مسعود ہیں. صدیق وفات پاتے ہیں, میت کو اٹھا کے مصطفیٰ کے روضے پہ لے جاتے ہیں, جا کے صدیق کی طرف سے سلام کہتے ہیں. اندر سے آواز آتی ہے, ادخلوا الحبیب الی الحبیب, محبوب کو محبوب کے پاس داخل کر دو. صدیق کی وہاں پہ قبر بنا دی گئی. مصطفیٰ نے پردہ فرمایا. صدیق حیاتی تھے, صدیق کی زندگی کا آخری دن ہے, صدیق حیاتی ہے. پہلے دن بھی سارے صحابہ حیاتی, صدیق کے آخری دن بھی سارے صحابہ حیاتی. بہت توجہ فرمائیں. صدیق اکبر نے مصطفیٰ کو بلوایا نہیں. وصیت کیا تھی, مجھے لے کے جانا ہے. ہم بھی مصطفیٰ کے روضے پہ جاتے ہیں, مصطفیٰ کو بلواتے ہیں. بہت توجہ. صحابہ کہتے ہیں نہیں آپ بیمار ہیں یہی بلا لیتے ہیں. کسی صحابی نے نہیں کہا کہ یہاں بلاتے ہیں. سب صحابہ کا عقیدہ تھا مصطفیٰ کے روضے پہ جائیں, مصطفیٰ زندہ ہے, سلام سنتے ہیں, جواب دیتے ہیں. باقی یہ صدیق کی کرامت ہے کہ آواز باہر آ
میں بھی صدیق کے عقیدے کو تسلیم کرتے ہیں، ہم اعمال میں بھی صدیق اکبر کو معیار مانتے ہیں۔ جو صدیق کو معیار مانے گا جنت میں جائے گا، جو صدیق کو معیار نہیں مانتا، صدیق کی جگہ اور ہے، اس کی جگہ اور ہے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔